So when you look at A into B, this will become maximum when the values are equal. That is what it says. Say, for example, A into B is maximum when A is equal to B. Now, that is the basic essence that we are trying to study. Now, for example, 10 could have been 1 plus 9, right? So if you look at 1 into 9, you get 9. It could have been 2 plus 8 also. So if you see 2 into 8 is 16. If you have 3 plus 7, right, you can see 3 into 7 is 21. If you have 4 plus 6, which is 10, you can have 4 into 6 as 24. You have 5 plus 5, which is 5 into 5, which is 25, which is 10. Once again, it just get reversed. 6 plus 4, once again, 6 into 4 is 24. So what do you see? You see it starts from 9, 16, you know, it keeps on increasing to 25. And then once again, from here, it keeps on changing. So the max value that we end up getting of sum 10, the product is 25, right? So that is the basic theme. So for a given product, for a given sum, the values are maximum. The product is maximum when the values are equal, right? So so let's just take an example. If you generalize this formula, for example, let's say we have an equation as 4x plus 7y is equal to 18. Now this is given to us, and we are asked to maximize the value of x ki power 4 and let's say y ki power 5, right? Now we know in this case there was just a and b, and we were able to, you know, simply multiply. But in this case here we are having x and y. So one way of thinking is I can first convert it as, you know, 4x and divide 4x ki power 4. I may want to convert as 4x ki power 4 divide by 4 ki power 4, and then I may want to convert this as, you know, 7y ki power 5 divided by 7 ki power 5, and then, you know, make sure this becomes a and b, and this becomes, you know, a plus b is equal to 18, and then I try to figure out and try to equate, you know, a is equal to b, and of course this constant terms is always there, right? Now this really complicates the issue. Now the idea here is, you know, how do we really figure out, you know, at which point these values will be equal? So we are having a constant is equal. So what we can do is this component, right? So this is a and b. So I can say this component needs to be divided into 4 parts. Let's say 4x needs to be divided into 4 equal parts, and this 7y needs to be divided into 5 equal parts, and they should be equal. For example, you know, I'll just, you know, make it a more application based question, and then I'll try to, you know, maybe, you know, reverse explain you why this is true. Say, for example, we all know, let's say a cylinder, right? I mean, we have this cylinder. Let's say this is the radius. Let's say this is h, right? Now we know the volume of a cylinder. Anybody knows the volume of cylinder? Square h. Pi R square h. Now this is the volume of a cylinder, right? Now if it is given to us that the radius plus height of a cylinder is fixed to, let us say, 6 unit, right? Now r plus h is given to me as 6. I want to maximize the volume of the cylinder. Now this is a very practical question as far as IPM exam is concerned. This can be really asked, and somebody can ask this question. Now this is an application of what I'm trying to teach here. But this is a simpler question. So it says radius plus height is fixed. You can't, if you increase, if you say radius is 1, h will become 5. If you say radius is 2, h will become 4. So we may have these possibilities, right? We may have these possibilities. But the idea here is to make sure that my, let's say, you know, let's say we're talking about integral value. There is some radius, because if you take radius as 0, h will become 6, but then it is no longer a cylinder, right? So we are, you know, sticking to our basic theme. Now, at which of these positions, of course, you may want to take decimals also. Fractions is also a possibility. So you'll have actually infinite number of possibilities. We are looking at one of those possibilities where the volume is maximized. इसका मतलब मैं r और h को क्या लूं कि volume maximize हो जाए. Now, if you look
what I have tried to explain you above, that sum of two quantities is 6. Now if I were to make sure that R into H were maximum, समझ में आ रहा है? अगर मैं चाहता RH मैक्सिमम हो तो मैं क्या वैल्यू लेता? अभी मैंने क्या पढ़ाया है, अगर R प्लस H 6 है और मुझे RH मैक्सिमाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा? 3 वेरी गुड. तो अगर हम 1 5 लेंगे तो 5 बनेगा, 2 4 लेंगे तो 8 बनेगा, 3 3 लेंगे तो 9 बनेगा, और फिर 4 8 8 बने, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब R इज इक्वल टू H हो जाएगा. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था, जन एग्जांपल लिया था. बट यहाँ पे मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम, यानी R स्क्वायर इंटू H मैक्स, क्योंकि इसका तो कुछ कर नहीं सकते, पाई का तो कुछ कर नहीं सकते, यानी R स्क्वायर इंटू H मैक्सिमाइज करना है. इसका बेसिकली मतलब पता है क्या? R इंटू H, ये मैक्सिमाइज करना है. यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटी है जिसको मैक्सिमाइज करना है. समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है कि R को कितने पार्ट्स मिलने चाहिए? 2, और H को कितने पार्ट मिलने चाहिए? 1. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? टोटल 6 है ना. अगर R इज इक्वल टू 3 कर दिया, मान लो R इज इक्वल 3 कर दिया, तो ये क्या मैक्सिमाइज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर R इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 3 किया तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा पाई इंटू 9 इंटू 3, 27, ये बन जाएगा. नाउ वी विल सी कैन वी मेक मोर देन दिस. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज R square H is nothing but R into H. That means if you have to make sure that these products are maximum, then R is equal to H. I must get this condition. Now this condition, the sum is 6, so I must get 2 is equal to 2. That means R is holding my 2 positions. So R needs to be basically taken as 2 components. So if I take R is equal to 4 and H is equal to 2, R is equal to 4 and H is equal to 2, because this R and this R are equally divided, and I have 6 parts basically, so I have to assign 4 parts to it. Now if you look at pi R square H, if you take this as this, now pi R square is 4 square into 2, so you have 16 to the 32. You see 32 pi is certainly greater than 27 pi, right? So basically what we are doing is R square is taking 2 parts. So how do you generalize this idea? Because if it could, the question could be, what is the maximum value of, R cube H square, for example? So what would it mean? It would mean 3 components are assigned to R and 2 components are assigned to H. So the sum needs to be split as 3 parts into R and 2 parts into H. Now, this is the background understanding of, why it works, how it works. Now, to put it more simply mathematically, just in the sake of understanding and learning, what we can do, this R uses 2 components. So what I would say I will take R by 2 should be equal to H by 1. How do I get R by 2? This R, it is raised to the power of 2, right? And that is why it needs to be divided into 2. 2 units need to be assigned into R and 1 H. Now, if you are given something like this becomes an equation. From here, I can say R is equal to 2H. Now, this is the sum. R plus H is 6. So R is equal to 2H. So I may say, H plus 2H is equal to 6. So 3H is equal to 6. So H is equal to 2. So H is equal to 2, R is equal to 4. Now at this particular point, this will give me maximum value. Now, if you look at this particular question, in this case, this constant, this area, this 4R needs to be divided into 4 parts. That means 4 units need to be assigned here, because it is x into x into x into x. So ये बराबर करना है y into y into y into y into, इसका ये मतलब है ना. तो इसका मतलब जो x को 4 यूनिट मिलने हैं और y को 5, तो ये जो वाला कंपोनेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो चेंज आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस पावर x. तो ये जो 4x है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सो दिस 4x अपॉन 4. दिस 7y इज डिवाइडेड इनटू 5 parts, so 7y upon 5. So from here I'll get an equation, and second value is given to me as 4x plus 7y is equal to 18, and I can solve this. ये इससे खत्म हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 by 5y. Now I may want to find out the value of x and y. I want to substitute this value here. So this becomes 4x, 4 into 7 by 5y plus 7y is equal to 18. So what do I get? 7 4s are 28y plus 7 5s are 35y. यही बनेगा. Divided by 5, तो ये बन जाएगा 5 into 18. So this becomes how much? 8 plus 5 becomes 13, carry 1. So 3 and 3, 6. Y is equal to 5 into 18. ठीक है?
तो यही आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 7/5 तो 4 इंटू 7, 7 4 जा 28/5 और यहाँ पे आ जाएगा 7y। ठीक है, तो 7 35 28 + 35 5 13 सिलेक्ट 63। ठीक है, तो 7 9 जा, तो यहाँ पे 9 2 में चला जाएगा, 9 7 में चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 10/7। ठीक है, सो y की वैल्यू 10/7 आ गई। आई एम लुकिंग एट x की वैल्यू आएगी 7/5 इंटू 10/7, 7 से 7 गया 2। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 7/5, I will get the maximum value for this x की पावर 5 4 and y की पावर 5। तो मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है, x की पावर 4 and y की पावर 5। so what I do is I put x as 2 की पावर 4 and I put y as 7/5 की पावर 5। so this is the maximum possible value that I can get. I hope you have understood what I'm trying to say. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब मैं इसका जनरल रूल बता देता हूँ। मतलब मान लेते हैं मेरे पास कोई ऐसे आ जाए ax + by इज इक्वल टू लेट अस से k आ गया। ठीक है, और हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, मान लो x की पावर m इंटू वाई की पावर n। इसका मतलब जो ax है दैट नीड्स टू बी स्प्लिट इनटू m पार्ट्स which should be same as जो by है that needs to be taken care in n parts। so ये इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, xy आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। ये इसका जनरल रूल है। जो इसका एप्लीकेशन है वो मैंने आपको वॉल्यूम के टर्म्स में समझाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थोड़ा मैक्सिमाइजेशन का भी एक पार्ट है, प्लस ये इनइक्वालिटी का भी ना, मतलब मैक्सिमाइजेशन समझ लो उस सेंस में, बिना डिफरेंशिएशन के करने का अंडरस्टैंडिंग है ये। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जहां पे हमें ये समझ में आना चाहिए, या जो ये बोलता है फॉर अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर गिवन प्रोडक्ट सम इज मिनिमम ठीक है व्हेन वैल्यूज आर इक्वल। क्या मतलब है, मतलब फॉर ए गिवन प्रोडक्ट, यानी a इंटू बी मान लेते हैं हमें 100 दिया हुआ है, हमें मिनिमाइज करना है a + b। ये क्या होगा, मिनिमम कब होगा, व्हेन a इज इक्वल टू b होगा। लेट नाउ I mean once again it's a general very simplistic example but let's try to understand। सम 100 है, मान लेते हैं 100 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 100 100 बन सकता है। लेट्स अज्यूम 2 इंटू 50 100 बन सकता है। फिर 4 इंटू 25 100 बन सकता है। 5 इंटू 20 भी 100 बन सकता है। 10 इंटू 10 भी 100 बन सकता है। उसके बाद वापस रिवर्स गाड़ी हो जाएगी, 20 इंटू 5 हो जाएगा, 25 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये सब 100 बनते चलेंगे। अगर हमें सम देखना है तो इसका सम देखेंगे तो 101 बनेगा, इसका सम बनेगा 52, इसका सम बनेगा 29, इसका सम बनेगा 25, इसका सम बनेगा 20, फिर इसका सम बनेगा 25, इसका सम बनेगा 29। आप ध्यान से देखिए मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, 20 पे। तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है मुझे, 20 पे, व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। हमें ये ध्यान रखना है। सो फॉर ए गिवन प्रोडक्ट द सम इज मिनिमाइज्ड व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि फॉर अ गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल which perimeter will have minimum area, which triangle will have minimum perimeter। मान लो मैंने एक ट्राइंगल का एरिया बोल दिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो कौन सा ट्राइंगल बनाए कि पेरीमीटर मिनिमाइज हो जाए। Sir, equilateral. वेरी गुड। फॉर अ गिवन फॉर अ गिवन क्वाड्रिलेटरल which figure will have minimum perimeter for a Regular. given volume given area। Sir, regular. रेगुलर कौन सा बनेगा, रेगुलर Square. क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, Square हो गया। बिल्कुल सही, स्क्वायर हो गया। समझ में आ Sir, रहा है rhombus भी हो गया ना? क्या। Square और rhombus दोनों ही हो गया ना? हाँ, लेकिन जिस ज्यादा सिमिलैरिटी किसमें आएगी, स्क्वायर में आएगी। Square में। ठीक है,
क्योंकि जो स्क्वायर है दैट इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, रोम्बस इज नॉट ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर पॉलीगन। quadrilateral मतलब यहाँ quadrilateral is a four-sided figure polygon, right? So a regular polygon not only has all four sides are equal, but all four angles are also equal. ठीक है? Yes, sir. ठीक. Okay, so just let's take one of those examples. Then generalize this question. एक example ले लेते हैं इसको समझने के लिए, और फिर इसको थोड़ा सा generalize कर लेते हैं. मान लेते हैं हमें एक question दिया हुआ है कि हमारे पास एक value है x square into y cube. उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 स्क्वायर, लेट्स से 3 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2. अब वंस अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक्स वाई होता तो एक्स इज इक्वल टू वाई कर देते, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, और एट द सेम टाइम हमें मिनिमम वैल्यू किसकी करनी है, 3x की और 3x प्लस 5y. तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना ये है कि जो मेरे पास ये 3x है इसको कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है? 3 है 2 पार्ट में. जो 3x है दैट विल टेक 2 यूनिट्स, और जो 5y है वो कितने में लेगा? 3 में. इसको इक्वेट करना इस केस में. ठीक है? यस सर. ठीक है, इक्वल टू बनाना था ना हमने, तो 3x को हमने 2 पार्ट्स में जो पावर में है, और 5y को 3 पार्ट्स में इक्वेट करना है. ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने वाले x को y की टर्म्स में लिख के यहाँ से सॉल्व होगा. वहां पे सम दिया हुआ था, वहां से हमने सॉल्व किया था. यहाँ प्रोडक्ट दिया, यानी कि जो पावर में है ना उतने पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है. सो लेट्स जस्ट से वी हैव टू कन्वर्ट सम x इज इक्वल टू y. ऐसा कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं किसी चीज को किसी में. तो क्या लेना चाहते हैं? लेट्स से हम क्या ले लें, x को ले लें, y को ले लें, क्या फायदेमंद होएगा? कुछ फायदेमंद नहीं होगा, दोनों में मेहनत लग रही है. तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3, ये बनेगा. ठीक है, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब. एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, सॉरी एक्स को लिख लिया ना. एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 3 स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करना है यानी 3 की पावर 4. ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई इनटू, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया इनटू वाई क्यूब. ये मेरे पास है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. ऑल आई एम लुकिंग इज टू सॉल्व इट. y की पावर 5 मान लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा. अच्छा, और भी तो है यहाँ पे, 3 की पावर 4 लेके जाते हैं, 3 की पावर 4 आ गया, और यहाँ पे 2 स्क्वायर कर दिया इंटू 5 स्क्वायर कर दिया. ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा. मेरे पास बचा 3 की पावर 10. तो y की पावर 5 हो गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 9. तो y की वैल्यू आ गई 9. आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर एंड फाइंड आउट x. x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 9. तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10. तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 10. आई एम लुकिंग टू मिनिमाइज दिस वैल्यू. सो मिनिमम ऑफ हमें चाहिए 3x प्लस 5y. So that is 3 into 10 plus 5 into 9. So that will give me 30 plus 45, that is 75. ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, I would generalize this concept now. The generalization of this concept is x की power m, y की power n. Let us say this is equal to k, और हमें मिनिमम चाहिए मान लेते हैं ax plus by. ठीक है, okay, let us say, but please understand we are assuming the coefficient of x and y to be positive, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो उल्टा हो जाएगा मामला. ठीक है, तो वो भी एक बार समझाइए. ये जो चीजें वैलिडिटी है ना, ये किसकी वैलिडिटी है? ये पॉजिटिव है, ये कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए. ठीक है,
ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं, ये जो हम कर रहे हैं, मतलब देखिए ये कहाँ पे काम आता है, एरियाज एंड वॉल्यूम्स में मान लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइज में। तो एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब एक्स और वाई ये जो है ना, ये ग्रेटर देन जीरो, ए और बी ये सब क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब आप बोल रहे हो कि मान लो मिनिमम, इसको मिनिमम करना है -3 + 7y, इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज इट कैन नॉट बी ए साइड ऑफ एनी फिगर एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। ठीक है, पिछले वाले में भी जो हमने किया था ना मैक्सिमम, वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हैं, ए और बी पॉजिटिव है मतलब वहां पे। ठीक है, तो ये वैल्यू है और हमें क्या करना है, ये गिवन है और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए एक्स है, ए एक्स नीड्स टू बी स्प्लिट इनटू m parts, this should be equal to by which needs to be split into n parts, that is the basic meaning. ठीक है, okay, now I'm going to give some results, वो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। Now if you if you are given something like this, let's say a minus x whole की पावर m, ठीक है, एंड b प्लस एक्स होल की पावर n, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। और ऑब्वियसली x की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली लेस देन a है, मतलब ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और m और n फ्रैक्शनल नहीं है, इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कब आएगी, जब पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि जो a माइनस एक्स जो है वो m पार्ट्स में डिवाइड होएगा, ठीक है, और b प्लस एक्स जो है वो n पार्ट्स में डिवाइड होगा, तब जाके ये मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं किस पॉइंट पे आएगा, बट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास x माइनस 6 है, होल की पावर 2 है, ठीक है, और मान लेते हैं मेरे पास 11 माइनस एक्स है, होल की पावर 3 है, ठीक, ये हमें दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली जो x, ध्यान रखना है हमें, x की जो रेंज है वो 6 और 11 के बीच में लाई करेगी, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी अंदर वाली, ये इंग्रेडिएंट सारे पॉजिटिव रहने हैं, ठीक है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू करवानी, मान लेते हैं। तो ये कहाँ पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, जब x माइनस 6 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा और 11 माइनस एक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जब इक्वल हो जाएगा तब हमें उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो अब हम निकाल लेते हैं कि भाई x क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 22 माइनस 2x, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 40, x इज इक्वल टू 8, यानी जब x की वैल्यू 8 होगी तब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सम नहीं दिया हुआ, हमें किसी चीज का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, तो कोई भी जब दो चीजों का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना होता है तो वो वैल्यूज बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो दो एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो पॉजिटिव रखना है हमने अंदर, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x को 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर बनेगा इंटू 11 माइनस 8 का होल क्यूब बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, यही बन रहा है। तो ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 27 विच इज 108, यानी इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके 108 के बराबर है। अब मैं आपको मतलब ब्रॉड सी बात बताता हूँ, जनरली क्या है कि जब कुछ ऐसा चीज दिख जाए जहां पे समथिंग की पावर कुछ आ जाए और अगर आप उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो हमेशा इक्वल टू करना पड़ता है उसको उतने पार्ट्स में। वो इक्वल टू क्यों करना पड़ता है, अगर आपने वैसे तो पढ़ी होगी सबने डिफरेंशिएशन थोड़ी सी, तो
जब हम dy बाई dx करते हैं तो बेसिकली क्या निकलता है, वो कर्व निकालते हैं कि वो इस पॉइंट पे वो ग्राफ चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब कोई ग्राफ की डायरेक्शन चेंज होती है, मान लेते हैं हमारा कोई ग्राफ ऐसे चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ये ग्राफ क्या है मेरा, ये ग्राफ का मिनिमा दिखा रहा है। ऐसे ही मान लेते हैं ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मुझे ग्राफ नीचे ले जाना है, तो मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो किसी पॉइंट पे तो चेंज करूंगा, जिस पॉइंट पे चेंज करूंगा वो क्या दिख रहा है मेरे को, मैक्सिमा दिख रहा है। तो जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ का शिफ्ट चेंज कहाँ हो रहा है। ठीक है, उस पॉइंट पे मतलब ना तो ग्राफ बढ़ रहा है ना ग्राफ नीचे जा रहा है, इसलिए हम इक्वल टू कर देते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव साइड में लेके जाएं और एफ ऑफ एक्स नेगेटिव साइड में लेके जाएं। ठीक है, वो सेम होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी नहीं जा सकते, ऊपर ले जाएंगे तभी हम सेकंड डिफरेंशियल देखते हैं। सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि गिर रहा है, नेगेटिव होता है तो बोलते हैं ऊपर चढ़ रहा है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होंगे तो हमें काफी फायदा मिलेगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बट मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी समझ सकें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर, क्लियर। ठीक, हाँ जी, बाकी रोहन, एक्सक्यूज नव्या। मी सर। यस सर। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? सर ओम, लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन को 0 रख देंगे तो एक भी नहीं रहेगा। क्या चीज? नहीं, इसको थोड़ी ना रख रहे हैं हम, मैं तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढने की बात कर रहा था। किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आता है, कैसे निकालते हो? ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमा आता है ना, वो हमेशा चेंज पे आएगा। 12th में हाँ। 12th में है क्या? हाँ 12th में आएगा ये। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो हमेशा जब हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो चेंज बताता है कि इस पॉइंट पे चेंज होएगा, इसका वो मतलब होता है। ओके सर। सर की उसका हाईएस्ट पॉइंट। हाँ, या तो हाईएस्ट भी हो सकता है वो, या लोएस्ट भी हो सकता है वो, इस बात से पता चलता है सेकंड डिफरेंशियल करके। ओके सर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं ग्राफ कहाँ जा रहा है? नीचे। सर नीचे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, ग्राफ तो ऊपर जाता है। वो सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव है मान लो, इसका मतलब है ग्राफ मिनिमा दे रहा है मैक्सिमा दे रहा है? मिनिमम। मिनिमा दे रहा है। क्यों मिनिमा दे रहा है पता है? क्योंकि ये ग्राफ नीचे आ गया, जब सेकंड डिफरेंशियल करोगे तो चूंकि ग्राफ वहां से ऊपर उठाए तभी तो पॉजिटिव देगा। जब सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव का मतलब है कि उस पॉइंट के बाद वो पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया। अब किसी पॉइंट के बाद वो बढ़ गया, यानी वो पॉइंट क्या रहा होगा? मिनिमा रहा होगा। मतलब किसी पॉइंट के बाद कोई चीज पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव यानी ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, इसका मतलब उस पॉइंट के बाद ऊपर गई है, यानी वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट सबसे कम था। सेकेंड डिफरेंशियल नेगेटिव है तो हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा बोलते हैं। सेकेंड डिफरेंशियल नेगेटिव तो क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ है वो नेगेटिव हो गया, यानी नीचे चला गया। नीचे जाने का मतलब है जो पिछले वाला पॉइंट था, जो हमने पॉइंट निकाला था, वो क्या रहा होगा? वो मैक्सिमा रहा होगा। यस सर। सेकेंड डिफरेंशियल पॉजिटिव, तब हम बोलते हैं अच्छा मिनिमा निकला हमारा। और अगर सेकेंड डिफरेंशियल नेगेटिव तो हम बोलते हैं मैक्सिमा निकला। रीजन ये कि जब सेकेंड डिफरेंशियल यानी नेक्स्ट पॉइंट हम ग्राफ का देख रहे हैं वो नेगेटिव है, नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव है यानी पिछला पॉइंट मैक्सिमम रहा होगा, ये इंटरप्रिटेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिव है, सेकेंड डिफरेंशियल पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ा है, वो चीज बढ़ी है, मतलब पिछले पहली ग्राफ पहला पॉइंट क्या रहा होगा? कम रहा होगा, यानी वो लोएस्ट पॉइंट रहा होगा, इसलिए ऐसा करते हैं इसको। ठीक है, यस सर। ओके, ओके सर। ठीक है, तो ये एक इसकी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद हमारे पास एक आधा और रिजल्ट है। अगर मैं बोलूं a प्लस बी होल की पावर बाय 2 होल की पावर m, ये बताओ बड़ा होगा छोटा होगा या बराबर होगा a की पावर m प्लस b की पावर m बाय 2 से? ये किस बात पे डिपेंडेंट है?
सर ए प्लस बी पे डिपेंड। हैं? ये मतलब मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन ये है कि इक्वल टू कब होगा, मान लेते हैं, ठीक है, और ये ग्रेटर देन कब होगा, ये लेस देन कब होगा, एम की क्या वैल्यू हो, ये कब कब ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां पे हमने ए और बी को मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर माना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इक्वल तब होगा जब m 1 हो। m 1 हो, वेरी गुड। और इक्वल तब होगा जब m की वैल्यू 1 हो, और भी हो सकता है कभी इक्वल। सर वो फिर ए और बी के वैल्यू पे Zero. डिपेंड होगा। ए और बी तो सेम ही ले रहे हैं ना, एक बार के लिए मान लो जो भी है, अच्छा ठीक है। भाई सब केसेस में सेम ही है, मान लो 2 3 मान लिया। हाँ, और कब होगा ये? 0 पे इक्वल होगा। 0 पे इक्वल होगा, वेरी गुड। यानी हमारे पास ये दो सिचुएशन है जब ये तो m अगर 0 नहीं होगा सर, तो 0 पे 1 इक्वल by नहीं 2 नहीं होगा। बन जाएगा? सॉरी 1। हाँ इक्वल होगा। अच्छा हाँ हाँ होगा ना। यस। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, ये सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है। मान लेते हैं अपने पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता, ओके लेट मी जस्ट चेक, मान लेते हैं 2 की पावर m होता, और a की पावर m प्लस b की पावर m प्लस c की पावर m अपॉन 2 होता, फिर क्या आता? सेम आता? नहीं सर। सर 3 होता तो आता। हाँ, तो ये वैलिड है 2 के लिए, ठीक है। और 3 पे, तो 3 पे अगर हम कर देते तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 0, 0 की वैल्यू कितनी बन जाती मेरे पास? 1, ठीक है। और यहाँ पे बन जाता 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 नहीं लेना है क्योंकि 3 टर्म्स है ना, Yes. तो क्या सेम आ जाता? यस सर। यस। आ जाता। ऐसे ही अगर ये 4 टर्म्स होती तो भी सेम तो आ बाय जाता। 4 बाय 4। हाँ बाई 4, यानी ठीक है, बाई 4 लेते सेम आ जाता। ठीक है, मैं आपको इसमें कुछ बताना चाह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं जो 2 के चीज के लिए दिखा रहा हूँ वो बाकी के लिए भी वैलिड है। जो काम हम दो वेरिएबल्स के लिए कर रहे हैं ना, वो हमारे ज्यादा वेरिएबल्स के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर m की वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए, तो क्या क्या बात बनेगी, या 1 से बड़ी हो जाए, a प्लस बी बाई 2 की पावर m और a की पावर m प्लस b की पावर m बाई 2। इफ m is greater than 1 or m is less than 1, less than 0, ठीक है, या तो 1 से बड़ा हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, उस सारे केसेस में क्या होने वाला है बताओ? ज्यादा। कौन सी वैल्यू, राइट वाली है या लेफ्ट वाली? लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा, यस सर। m की वैल्यू अपन मान लेते हैं 2 पुट कर देते हैं, मान लेते हैं, तो मुझे बताओ a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बड़ा है या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बड़ा है? a प्लस बी होल स्क्वायर। बाई 2 है। सर राइट साइड, राइट साइड। अभी भी नवे, अभी भी वही अटकी है, बता कौन सा बड़ा है? करके देखो, मान लेते हैं ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2a भी आएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ध्यान दियो। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोलता हूँ, बता, a को 1 पुट कर, b को 2 पुट कर, मान लेते हैं पुट कर लें पे तो हर्ज नहीं है ना, अगर वो इसके लिए वैलिड है तो बाकी के लिए भी हो ही सकता है, अगर किसी एक के लिए गलत हो जाएगा तो सबके लिए गलत होगा। तो यहाँ पे अपन 1 प्लस 2 पुट करते हैं, कितना बनेगा 3, 3 बाई 2 कितना बनेगा 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना बनेगा 2.25। अब यहाँ पे पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर बनेगा 1, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5, कौन सा बड़ा है, राइट से। सो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू को तो वही पॉइंट आएगा, मतलब अगर हम इक्वल टू 0 पुट कर दें तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, हमेशा।
ठीक है, Okay, sir. इक्वल टू की सिचुएशन कब आएगी? जब a इज इक्वल टू बी पुट कर देंगे। एक तो ऊपर इक्वल टू कब आ गया? जब पावर सेम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम अंदर वाली वैल्यू a इज इक्वल टू बी भी पुट कर देंगे तो भी इक्वल टू आ जाएगा, ये है ना। मान लेते हैं 2 पुट किया अपन ने, इसको बराबर कर दिया, ठीक है। a इज इक्वल टू बी कर दिया तो a प्लस ए, 2a डिवाइड बाई 2 a का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर। ये क्या बनेगा? a स्क्वायर 2a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये क्या बनेगा? a स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा ना। when a is equal to b। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, आ रहा। सर जब a इज इक्वल टू b होगा तब m की कोई भी वैल्यू पुट कर दे हम इक्वल ही आएगा। इक्वल आएगा, किसी भी केस में कहीं पे भी पुट कर दो तब इक्वल आएगा। a इज इक्वल टू बी पुट करते ही ना m इररिलेवेंट हो गया, बाकी सब आ जाएगा इक्वल। अभी कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा है कौन सा बड़ा है? राइट साइड। बस ये स्टार याद रहेगा ना, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, यस। ठीक। अब अगर अपन सबको सेम कर दें मान लो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मान लो सबको 24 कर दिया तो ये 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4 होल की पावर 63 बनेगा। और ये बनेगा 4 इंटू 24 की पावर 63 डिवाइड बाई 4, ये बनेगा अगर बराबर हो गया तो। देखिए कट के ये 24 की पावर 63, ये कट के 24 की पावर 63 बराबर हो गया। तो जब a इज इक्वल टू बी होगा तो बराबर होएगा ही होएगा। अगर a इज नॉट इक्वल टू बी है तो कब बराबर होगा? जब m इज इक्वल टू 1 या m इज इक्वल टू a, ठीक। अदरवाइज ये चीज हमेशा बड़ी होगी। ये किस डोमेन में हमेशा बड़ी होगी? या तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है या 0 से छोटी है। इसका मतलब हम किस डोमेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो सॉरी, 0 है 1 ऐसे आएगा। ये 0 है 1 है, ठीक है। या तो m की वैल्यू 1 से बड़ी हो और या 0 से छोटी हो। इस केस में इनइक्वालिटी ट्रू है। व्हाट इफ द वैल्यूज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1? समझ में आ रहा है? अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो लॉजिकली बताओ इनइक्वालिटी में क्या चेंज आएगा? हट जाएगी। है, रिवर्स हो जाएगा। a प्लस बी होल है ना, और यहाँ पे a की पावर m। अब ये बड़ा था ना, अब ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा इफ m इसके बीच में, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एक चीज सर याद, हाँ आपने जो अभी बताया कि 1 से आगे की वैल्यूज लेनी और 0 से पीछे की वैल्यूज लेनी है, तो इसमें हम सारी वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं फिर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू? किसमें? उसमें सारी वैल्यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नॉन इंटीग्रल। बट जो पावर है वो 0 से 1 के बीच में, मतलब अगर पावर फ्रैक्शनल पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं। यस सर। अगर वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव फ्रैक्शन में भी रहेगी बड़ी और पॉजिटिव में भी रहेगी बड़ी, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के काम में आता है। अब ये तो 2 है, 4 टर्म्स ले ली मैंने, ज्यादा भी ले सकता था, कम भी ले सकता था, बट ये पता होना चाहिए तभी बनेगा। यानी कि a प्लस बी होल की पावर a प्लस बी बाई 2 होल की पावर m जो है वो हमेशा लेस होगा a की पावर m b की पावर m डिवाइड बाई 2 से। कब? व्हेन m डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी m जो पावर जो है अगर वो पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, उसके उस रेंज के बियॉन्ड है,
तो वो इनइक्वालिटी ट्रू है, अगर उस रेंज के अंदर आ गई तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमने किया था ना, जो भाई कोई इनइक्वालिटी किसी रेंज के बाहर अगर ग्रेटर है तो उस रेंज को छोड़ के बची हुई रेंज में कम होगी। दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो ज्यादा है या कम है। तो अगर वो 0 और 1 को छोड़ के इनइक्वालिटी राइट वाली ज्यादा है तो 0 और 1 के बीच में वो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। द ओनली क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस एट 0 एंड 1। 0 एंड 1 पे वो इक्वल टू हो जाएगा। क्या उसके अलावा भी ये इक्वल टू हो सकता है? हाँ, अगर जो अंदर वाली वैल्यूज हैं ए बी सी जो भी ये है अंदर टर्म्स वो भी इक्वल हो जाए तो भी हो जाएगा, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके सो उसके बाद एक ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, अगर आप करना चाहें तो घर पे बैठ के डिराइव कर लेना u बाई वी का। बट मान लो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसकी मैं ये वाला इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे बुक में भी है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं किस फॉर्मेट में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी मान लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ये कोई फॉर्मेट है और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है, मतलब x विल मेक दिस क्वांटिटीज पॉजिटिव, सो x हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस ए, x हैज मतलब यहाँ पे जो x हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस ए, x हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस बी, x हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस सी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ओवरऑल जो ये टर्म है वो पॉजिटिव अगर होगी तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आएगा a माइनस सी प्लस b माइनस सी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। ये कहाँ से आया? ये डिफ्रेंशिएट करके आया। दो मेथड, यूवी मेथड लगा लो या a इंटू बी बाई, इसको a मान लो इसको b मान लो, उनको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट कर कुरा के ये आ जाएगा। और जो जिस पॉइंट पे आएगा, जो x की वैल्यू है, ये तो मिनिमम वैल्यू है, जिस पॉइंट पे आएगा अगर हमें वो पॉइंट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, विच इज a माइनस सी इंटू बी माइनस सी माइनस सी। इस पॉइंट पे आएगा, यानी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी। ठीक है सर, एक आपने राइट हैंड में लिखे x की वैल्यू, तो लेफ्ट में क्या लिखा? मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? रिजल्ट मिनिमम वैल्यू। ओके सर। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है 6 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब मान लेते हैं अगर हम ये डायरेक्टली पुट करें किस पॉइंट पे आएगा, तो a माइनस सी यहाँ पे, तो सबसे पहले x प्लस ए एक्स प्लस बी ए बी सी पर पुट कर लेते हैं। अब a माइनस सी यानी कि जो c वाला है वो नीचे वाला है, तो बड़े वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, 6 में से 4 माइनस करना है, इंटू 12 में से 4 माइनस करना है, माइनस सी यानी 4 माइनस करके अंडर रूट करना है। इस पॉइंट पे आएगा तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 8, ठीक है, और -4, तो ये अंडर रूट करेंगे तो 8 टू जा 16, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा? √12। ठीक है, तो ये आ रहा है ना? हाँ, अगर हम इसमें इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, मान लेते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है a माइनस सी हमारे पास कितना बन रहा था 2, प्लस b माइनस सी हमारे पास कितना बन रहा था 8, प्लस 2 इंटू ये हमारे पास बन रहा था 2 इंटू 8, है ना, 2 इंटू 8, तो बन जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 16 यानी 4, यानी 10 प्लस 8, तो मेरा मिनिमम आंसर आ जाएगा 18। दैट इज माय आंसर। You may want to differentiate it, do whatever you want, you can always get this answer easily. ठीक है, ये आपका मिनिमम आंसर आ जाएगा। सर इस सब वैल्यूज के लिए वैलिड है कि जैसे हम मान लेते हैं a माइनस सी नेगेटिव आ जाए और b माइनस सी भी नेगेटिव आ जाए? नहीं, इसमें जो है ना, जो c है, that has to be minimum value out of this, पॉजिटिव लेना पड़ेगा सारा।
उस स्पेसिफिक केस के लिए ये। ठीक है सर। ठीक है, तो दिस इज सम आइडियाज एज फार एज मैक्सिमम मिनिमम इज कंसर्न। ठीक है, ये हमारा बच गया था जब हम मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे और मॉड्यूलस कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि इसमें ना बुक में जब सॉल्व करोगे तो इसमें कुछ केसेस मिलेंगे। वो केसेस क्या हैं? वो ये केसेस थे जो अपने रह गए थे, वो मैंने करा दिए इसको। ठीक है, तो इसके अंदर ये कंपोनेंट हमारा खत्म होता है। और कल कितने लोग आ रहे हो क्लास में, या ऑनलाइन करोगे? सर ऑफलाइन देखते हैं। हाँ, देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। सर हाँ, ऑनलाइन आप ना ऐसे राइटिंग टैब पर ही करवा देना, ढंग से समझ आता है, वो सॉफ्ट बोर्ड और कैमरा से समझ नहीं आता। ठीक है, ठीक है। तो जब मैं क्लास लूंगा तो मैं राइटिंग पैड और बोर्ड से करवा दूंगा। ठीक है, कर देता हूँ, कोई दिक्कत। इसमें तो सर समझ में आ रहा है ओपन ना, ऐसे तो समझ में आ रहा है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं अभी जो हम कर रहे हैं। यस सर, यस यस। हम्म, ठीक है, ठीक है। और बताओ क्या करना है, क्या कर सकते हैं अभी? सर आप हमें लॉगरिथम्स की इनइक्वालिटीज करवा दो। लॉगरिथम तो हुआ नहीं अभी, पहले लॉग सर करना वो पड़ेगा ना, फिर इनइक्वालिटी होगी ना। वैसे बाय द वे लॉगरिथम की इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? सर मतलब जैसे उसमें रिलेशंस होते हैं कि अगर ए और बी की वैल्यू फ्रैक्शनल हो तो उसमें 1 से ज्यादा आती है 1 से कम आती है, इस टाइप की इनइक्वालिटीज। अच्छा, हाँ, वो तो लॉ की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। पहले में लॉ की प्रॉपर्टीज जब सीख लेंगे ना फिर तो आ ही जाएगा, फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो मैं एक बार ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ इस क्लास में। लॉग का जो ग्राफ होता है, वैसे ग्राफ्स पहले हम पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। अगर लॉग एक्स का ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे से बनेगा। ये 1 पे है नेचुरल लॉगरिथम में, क्योंकि लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो बेस 10 है, इज 0। तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसे लॉग होता है। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास लॉग हाफ है, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेस 10 एनी 10। सो लॉग हाफ इज व्हाट? लॉग ऑफ 2 की पावर -1। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूं एक बार। इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होता है यहाँ पे आ जाएगा -1 log 2 बेस 10। ठीक है, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो आगे -1 लगा हुआ है तो ये आ जाएगा -0.3010। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब log ऑफ हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी है? ये नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यानी log ऑफ 1 2 3 4 जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। मान लो log 2 है तो 0.3010 मान लेते हैं। थोड़ा ग्राफ ऊंचा चला गया, थोड़ा और नीचे की तरफ, मतलब उसका कर्व थोड़ा सा और मतलब नीचे आएगा, ऐसे आता है। थोड़ा ज्यादा हो गया है वो, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है ना। मान लो ये 1 है तो 2 पे जाके तो भी ये हाफ आएगा, इस टाइप से थोड़ा सा और इस टाइप से। तो ऐसे 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 मतलब ऐसे चलता रहता। तो जब जब हम हाफ लेंगे तो x की वैल्यू हाफ है तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, विच इज -0.3010। जैसे x की वैल्यू मान लो 2 ले ली हमने तो ये वाला मेरा पॉइंट आ जाएगा, ये है 0.3010 पॉजिटिव। यानी जब भी बेस कैनॉट बी नेगेटिव, राइट, बेस इज नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव की पावर कुछ करके ये अंदर वाला रिजल्ट आता है। तो लॉग का जो रिजल्ट है वो तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर आप देखो पूरा का पूरा ग्राफ राइट हैंड साइड में है तो जो लॉग ऑफ एक्स है, ये वाली जो क्वांटिटी है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव, x cannot be negative and it can also not be 0, because आप देखो ये ग्राफ कभी भी 0 पे टच नहीं करता, इंफिनिटी बन जाता है, ऑलमोस्ट इंफिनिटी एक्सटेंडिंग। सो दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव और इंफिनिटी, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वाली वैल्यू, अगर मेरी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो मेरा ग्राफ कैसे है? 0 से 1 के बीच में ग्राफ नेगेटिव है। और अगर ये ग्राफ मेरा x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये मेरा वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव है। और अगर ये वैल्यू x की इक्वल टू 0 है तो मेरा log x का वैल्यू 1 आ रही है। एक चीज तो यही मेरे ख्याल से शायद तुम पूछ रहे होगे, और तो क्या पूछ रहे होगे, क्योंकि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, अंदर वाली वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, बट रिजल्ट कैन बी नेगेटिव। द रिजल्ट विल ओनली बी नेगेटिव व्हेन दिस वैल्यू इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एज इन पॉजिटिव फ्रैक्शन,
जैसे हमने ऊपर m की वैल्यू निकाली थी 0 से 1 के बीच में, वैसे ये वाली वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होगी. x has to be between 0 and 1. Only then log is defined. Otherwise it cannot be, it is not defined. ठीक है. सर एक बार वापस बता दो ये मतलब x तो log x के अंदर x वाला है ना? हाँ ये x है, ये x है, यहाँ पे x है, ये log x है. x की ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वो वाला है. ठीक है सर. ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इसके को यहीं पे रैप अप करते हैं, कल क्लास लगाते हैं और फिर आगे का शेड्यूल ऐसे ही शाम का कुछ बना लेंगे. अब बस एक बच्ची है जिसको थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, देखता हूँ मैं उसको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ अभी. ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी है?